chloride, propylene oxide, cobalt matte, naphtha, wool fibers, inputs for manufacture of artificial kidney and disposable sterilized dialyzer, and fuels for nuclear power plants. To further incentivize e-mobility, customs duty is being exempted on certain parts of electric vehicles. Customs duty is also being exempted on capital goods required for manufacture of specified electronic goods. So the export duty is being rationalized on raw and finished leather to provide relief to this sector. Crude prices have softened from their highs. This gives me room to review excise duty and cess on petrol and diesel. I propose to increase special additional excise duty and road and infrastructure cess, each one by 1 rupee a litre on petrol and diesel. It is also proposed to increase custom duty on gold and other precious metals from 10% to 12.5%. It is also proposed to increase custom duty on gold and other precious metals from 10 to 12.5%. Tobacco products and crude attract national calamity and contingent duty. In certain cases, this levy has been contested on the ground that there is no basic excise duty on these items. To address this issue, a nominal basic excise duty is being imposed. Sir, I am also proposing few amendments to the Customs Act. Recent trends reveal that certain bogus entities are resorting to unfair practices to avail undue concessions and export incentives. While we have intensified our efforts against such nefarious activities, provisions are being incorporated in the Act for enhanced penalty and prosecution for such offences. Further misuse of duty-free scrips and drawback facility involving more than 50 lakh of rupees will be a cognizable and non-bailable offence. GST has completed 2 years. An area that concerns me is that we have huge pending litigations from pre-GST regime. More than 3.75 lakh crores of rupees is being blocked in litigations and service tax and excise. There is a need to unload this baggage and allow businesses to move on. I therefore propose a legacy dispute resolution scheme, that will allow quick closure of these litigations. I would urge the trade and business to avail this opportunity and be free from legacy litigations. The details of my tax proposals are given in the annexure. Sir Speaker, I thank you for this opportunity, and with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. To Srimati Nirmala Sitaram, Manya Vitt Mantri ji. I just would like to mention, although I have commended the budget, I just would like to mention, I have not mentioned specific allocations for the scheme and programs. I have not mentioned specific allocations for schemes and programs. All these details are available in the budget documents as much as my speech's annexure. I also thank and take this opportunity for the response that we've received for the crowdsourcing of ideas for the budget. Immense suggestions from common citizens reached us. We have benefited from the crowdsourcing. The one last mention, which is more for the curiosity's sake, the fiscal deficit. The fiscal deficit this year is 3.3%, brought down from 3.4%.
Thank you. आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय वित्त मंत्री जी। Don't have the papers with me. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the statements regarding medium-term fiscal policy, fiscal policy statement, and the macroeconomic framework statement under Section 3, subsection 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act 2003. Item number 3. Sir, with your permission again, I rise to move for leave to introduce the Finance number 2 Bill 2019. प्रश्न ये है कि वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष हुआ है, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I now introduce the bill. माननीय सदस्यों, मैं इस सभा की ओर से देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जी को बजट पेश करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं सभी माननीय सदस्यों को भी 2 घंटे 15 मिनट तक आपने जिस शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के पहले बजट को सुना, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 8 जुलाई 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और ये था 2019 का मोदी सरकार के कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल का पहला बजट, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। और निर्मला सीतारमण ने इस समय कई बातें बोली। बजट के दौरान 2 घंटे 15 मिनट का ये पूरा बजट पेश किया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि हम न्यू इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं और वही 1 नेशन 1 ग्रिड और बिजली की योजना, तो वही आधार कार्ड के जरिए पेंशन योजना को लागू किया, तो वही 7 करोड़ रुपए उज्ज्वला गैस कनेक्शन की योजना छोड़ी गई, तो वहीं छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की योजना दी गई। देश के हर गांव में, हर घर में पानी पहुंचेगा और देश में नई शिक्षा नीति स्टडी इन इंडिया की शुरुआत होगी, तो 1,05,000 करोड़ का विनिवेश। तो वहीं भारतमाला योजना से सड़कों का निर्माण, ये था मोदी सरकार का पहला बजट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश हुआ। संसद में कुल 2 घंटे 15 मिनट तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने कहा कि भारत रोजगार देने वाला देश है और अब इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं कॉरिडोर हाईवे को जोड़ने का काम तेज हुआ, तो उद्योगों का मुनाफा बढ़ना जरूरी हुआ। उड़ान स्कीमें लागू की गई, तो छोटे शहरों में हवाई सफर को जोड़ने का काम किया गया। 12 साल में रेल को 50 करोड़ रुपए चाहिए, तो वहीं 1 नेशन 1 ग्रिड बिजली योजना, आधार कार्ड के जरिए पेंशन योजना लागू की गई। 7 करोड़ उज्ज्वला गैस योजना कनेक्शन दी गई। और बजट शुरू करने से पहले निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू इंडिया की ओर से हम न्यू इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। मजबूत खाद्य सुरक्षा पर दुगना खर्च दिया गया है।
और बता दें कि बजट पेश करने से पहले बता दें कि 2022 तक सभी को आवास का लक्ष्य इस बजट में दिया गया। साल 2022 तक हर घर को मिलेगी बिजली। गांव में हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा और कुल 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण होगा। इनमें टॉयलेट, बिजली, रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय 2024 तक हर घर को जल सुनिश्चित करेगा। वहीं 97% लोगों को हर मौसम में सड़क। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण, तो इस पर 80,250 करोड़ रुपए होंगे खर्च। गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कें होंगी अपग्रेड। स्वच्छता अभियान के तहत हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था। बिजली टैरिफ में सुधार की योजना। आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा। हर पंचायत को इंटरनेट से जोड़ेंगे। देश में पानी और गैस के लिए राष्ट्रीय ग्रिड बनेगा। सभी राज्यों को ग्रिड से बिजली मिलेगी। तो वहीं साहिबगंज और हल्दिया में 2 टर्मिनल बनेंगे। नेशनल हाईवे प्रोग्राम फॉर नेशन वन ग्रिड योजना के लिए ब्लूप्रिंट। जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधनों का प्रबंधन करेगा। सरकारी जमानों को बेचने का फैसला। पीएसयू की जमीनों पर सस्ती हाउसिंग स्कीम। किसानों को अलग बजट की जरूरत नहीं। 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का निर्माण। और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। खाद्यान्नों, दलहनों, तिलहनों, नारी तो नारायणी योजना लॉन्च होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पर जोर। जनधन बैंक खाता वाली महिलाओं को 5,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की सुविधा। सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली किसी एक महिला को कर्ज। मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रुपए का कर्ज। भारत में अध्ययनरत नाम का कार्यक्रम। उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुसंधान पर जोर इस बजट में इस पर दिया गया है। 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया, जिसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी। शिक्षा में ऑनलाइन कोर्स बढ़ाने पर फोकस होगा। नई शिक्षा नीति में स्कूलों, कॉलेजों में बदलाव का प्लान। 1 करोड़ छात्रों के लिए स्किल्स योजना। रेलवे में बुनियादी ढांचों को ठीक करने के लिए 50,000 करोड़। रेलवे में आदर्श किराया योजना लागू। पैसेंजर फ्रेट सर्विस शुरू होगी। ट्रैक के लिए पीपीपी मॉडल को मंजूरी। रेलवे में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी बढ़ेगी। बता दें कि पीपीपी के जरिए जुटाए गए निवेश से रेलवे का तेज विकास। लोन देने वाली कंपनियों को आरबीआई कंट्रोल करेगा।